Again, but I say that linguistics is not only limited to the description of language. ये जो मैंने आपको बात अभी कही है, तो this is actually uh, taking back you to the early 20th century. So when we were talking about that, what was actually the shift in studying the language? अच्छा, अब language में जो एक shift आया, change आया, that the focus was on describing the language from the phonological point of view, from morphological point of view, from the syntactic perspective, from the semantic perspective, from the pragmatic perspective. हमने एक लैंग्वेज को लिया, और जो पहले प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच थी कि जो मेन फंक्शन हुआ करता था जो ग्रामेरियंस का या लिंग्विस्टिक्स या जो लैंग्वेज स्कॉलर का, दैट वाज सिंपली to describe or simply to prescribe or inform the people what should be and what should not be, how the language should be used and how the language should not be used. लेकिन अब वो शिफ्ट इस पर आ गया, अब चेंज जो आया वो क्या आया, that now the focus of the study of linguistics should be to describe a language. कि हम एक लैंग्वेज को लेते हैं, उसके साउंड सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं. हम ये नहीं कहते कि हाउ द पीपल शुड स्पीक, बल्कि सिंपली हम बात करते हैं कि हाउ पीपल स्पीक एंड व्हाट आर द डिफरेंट साउंड स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज, what are the different word structure in a language, what are the different grammatical structure in a language, that simply we discuss without giving any judgment. अच्छा, इसके हमने बोला कोर लिंग्विस्टिक्स, कोर मेन लिंग्विस्टिक्स. अच्छा देखें, लेकिन ये जो आपके सामने स्लाइड है, यू कैन सी कि यहाँ पर कोर लिंग्विस्टिक्स के अलावा भी एक हमने जिसको बोला मैक्रो लिंग्विस्टिक्स. तो ये लिंग्विस्टिक्स बिल्कुल ऐसी चलती रही, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इमर्ज्ड many problems which were related with the language, जिनका ताल्लुक लैंग्वेज के साथ था. लेकिन but to address these problems the linguistic knowledge was not enough. यानी linguistic knowledge काफी नहीं था. We also needed the knowledge and the company or the association or the working relation with the other subjects as well. देखिए, for example, what should be the medium of instruction in a country? किसी मुल्क में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? अब यू विल सी ये बेसिकली लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका आंसर मॉर्फोलॉजी या फोनेटिक्स या फोनोलॉजी के पास नहीं है. वही बिकॉज इसके साथ आपको एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, यानी आपको लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज का भी पता हो प्लस यू ऑल्सो नो पॉलिटिक्स. अच्छा, you see that we do have so many educational or academic problems. For example, that you are teaching the students but they are not getting motivated. आप पढ़ा रहे हैं लेकिन जो लर्नर्स है वो मोटिवेटेड नहीं है. अब ना यू विल सी दैट ये एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो है, लेकिन बट दिस लैंग्वेज प्रॉब्लम also needs to be worked with some other subject. साइकोलॉजी का भी आपको पता होना चाहिए, सिमिलरली आपको एजुकेशन का भी पता होना चाहिए. तो अच्छा, somebody is having the linguistic problem that he or she cannot utter the words properly, to properly speech therapy, speech disorders की जो हम बात करते हैं, you will see that यानी कोई speech disorder है ना, अब you will see that it is actually a language problem. लेकिन but to solve this problem you don't need only language, you also need the knowledge of neurology as well. brain का भी आपको पता होना चाहिए. You will see that there emerge some real life language related problems. ये phrase आप याद कर लें. So there emerge some real life language related problems. तो उन रियल लाइफ लैंग्वेज रिलेटेड को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए द लिंग्विस्टिक्स स्टार्टेड वर्किंग विद द अदर डिसिप्लिन. दिस इज व्हाट वी से multidisciplinary approach or interdisciplinary approach. The linguistics plus psychology to solve the language problems which are related to the psychology of the learners, psycholinguistics. So similarly, that language plus educational knowledge to solve the linguistic or language education related problem, educational linguistics. So we see that different dialects are there. Urdu hai that is spoken by different ways.
तो डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट सोशल इश्यूज हैं, डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं। हर क्लास, गरीब अलहदा बोल रहा है, रिच पीपल दे आर यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज, एजुकेटेड पर्सन डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, नॉन एजुकेटेड डिफरेंट यूज कर रहे हैं। तो वी नीड लैंग्वेज नॉलेज प्लस we need the language of society as well, sociolinguistic. So by this way we see that when linguistics started working with the other disciplines to solve the real life language related problem, this is what we say applied linguistics. वो भी एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का हुआ। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का स्कोप जो है दैट इज मच ब्रॉडर। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है तो एक दैट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड फील्ड है। आपने क्रिमिनल्स को पकड़ना हो तो आप यू विल गो फॉर फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स। आपने कोर्ट के साथ कोई इश्यूज डिस्कस करने हैं, ठीक है, तो आपको लॉ डिस्कोर्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सिमिलरली आपने मतलब कोई टेक्नोलॉजी के साथ आपने काम करना है, लैंग्वेज एप्स बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। आपने डिजिटल डिक्शनरीज बनानी है तो कंप्यूटेशनल लेक्सिकोग्राफी। आपने जो है जो लोगों के मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं कि किस तरह ब्रेन हमारा काम करता है, तो साइकोलिंग्विस्टिक। कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के इश्यूज हैं, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स। तो मीन टू से कि आप एक बहुत बड़ी फील्ड है, ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, जिसे हम बोलते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, वेयर so where we have some language problem and we need the help of the other subject. So this is to solve the real life language related problem. This is what we say applied linguistics. Applied linguistics का scope जो है वो बहुत broad है। डिस्कोर्स एनालिसिस हम देखते हैं कि किस तरह पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी लैंग्वेज के जरिए से लोगों को मनूवर कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं। कुछ और कह रहे हैं, मीनिंग कुछ और है, उनके अंदर हिडन पर्पसेस कुछ और हैं। आप एक एकेडमिक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं लेकिन बेसिकली एक आप आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो एक आइडियोलॉजी आपको एक हिडन वे के साथ आपके अंदर इनकलकेट की जा रही है। डिस्कोर्स एनालिसिस में आप डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में आप डिस्कस करेंगे, कन्वर्सेशनल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो ये आप देखें, मतलब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है उसका स्कोप हर जगह पे है। बल्कि मैं तो स्टूडेंट से कहता हूँ कि जब आप आगे एमफिल पीएचडी में जाएंगे तो आप लिंग्विस्टिक्स जो है दैट हैज एवरीथिंग टू ऑफर टू यू। आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको मूवीज में, ड्रामों में इंटरेस्ट है, फिल्में देखने में इंटरेस्ट है, आप सिमेटिक्स में चले जाएं। आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में चले जाएं। आपका आइडियोलॉजी में, रिलीजन में इंटरेस्ट है तो आप रिलीजियस डिस्कोर्स में चले जाएं। आपको क्लासेस पढ़ाने का शौक है, पढ़ने क्लास के प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के देखने का इशू है, आप एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स में आ जाएं। आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप साइको लिंग्विस्टिक्स में आ जाएं। आपको सोसाइटी के डिफरेंट क्लासेस और क्लास डिफरेंस के ये रिच हैं, ये पुअर हैं, ये इस क्लास के, ये डायलेक्ट ऐसा है, आप सोशियो लिंग्विस्टिक्स में आ जाएं। आपको चीज़ों को अप्रिशिएट करने का, लिटरेरी डिस्कोर्स को अप्रिशिएट करने का दिल चाहता है, में इंटरेस्ट है, आप स्टाइलिस्टिक्स में आ जाएं। आपके टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में आ जाएं, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में आ जाएं, डिजिटल लेक्सिकोग्राफी में आ जाएं। तो मीन टू से फॉर ऑल ऑफ यू एवरीथिंग इज देयर इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो आज जो हमने दो मेन आज डिस्कस मैंने आपसे करने की कोशिश की, बिकॉज ये जो आज का और जो लास्ट लेक्चर था इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल गिव यू अ ब्रॉडर आइडिया कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, व्हाट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट इन द फ्यूचर, और व्हाट लिंग्विस्टिक्स इज। तो हमने जो, मैं उसको समराइज करूँ कि हमने डिस्कस किया कोर लिंग्विस्टिक्स और हमने डिस्कस किया अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। व्हेन वी डिस्क्राइब अ लैंग्वेज at the various linguistic levels, this is what we say linguistic core linguistics. Or when linguistics works with other subjects to solve the real life language related problem, this is what we say applied linguistics. तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारी ब्रांचेस आपके सामने हैं। थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स या कोर लिंग्विस्टिक्स भी आप देख सकते हैं और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स भी आपके सामने हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स है, बायलिंगुअलिज्म है, बायोलिंग्विस्टिक्स है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, मैथमेटिकल लिंग्विस्टिक्स है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स है, कॉस्मिक लिंग्विस्टिक्स है, डिस्कोर्स एनालिसिस, एजुकेशन लिंग्विस्टिक्स है, एथनो लिंग्विस्टिक्स है। एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि हम देख सकते हैं कि इसमें कोई आपकी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें लैंग्वेज ना हो और जिसमें हम इस पर काम ना कर सकते हैं। तो anyway, so this is what I wanted to discuss with you, and I hope कि आप
तो काफ़ी सारी बातें इसमें क्लियर हुई होंगी। टीचर ने ऐसा पढ़ा दिया कि जी वो सब चीज़ें समझ आ गई हैं, और दूसरे मीनिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जी कुछ भी समझ नहीं आया। तो अब नो आई डोंट नो। सर, समझ आया आपका सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से चल समझाया। चलें चलें, दैट्स वेरी गुड। लेकिन देखिए कोशिश करें कि देखिए जिसे हम नॉलेज बोलते हैं ना, वो बेसिकली आता है क्वेश्चन करने से, समझने से चीज़ों को। अच्छा, एक जो लास्ट पॉइंट थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखें ये आपने 3 4 5 चीज़ें आपने मिला के आपने पढ़नी है। देखिए एक टीचर का लेक्चर है, वो अपनी जगह ऑनलाइन लेक्चर मैंने दे दिया, ये अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको मैं स्लाइड्स भी आपसे शेयर कर दी हैं, ये अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपकी जो लेकिन द लेक्चर ऑफ द क्लास एंड द स्लाइड्स, दे कैन नॉट रिप्लेस द बुक्स। तो बुक्स को ये रिप्लेस नहीं करेंगी। तो प्लीज आपने जो है मतलब यानी अपने जो भी आपकी यानी आपने इन सारी चीज़ों को जाकर मैंने आपको बुक्स पे आपसे शेयर की हैं, तो प्लीज उन सारी चीज़ों को मतलब यानी डिस्कस करें।